Hello students, today we are on our third lesson of our EVS2 subject. Today our topic is Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. In previous two lessons we learned about the Maharashtra before Shivaji, and in our second lesson we learned about the wars of sons. And in that second lesson, in the last part of that lesson, we learn about the work of Sant Tukaram and the work of Samartha Ramdas. Then, now from onwards, we will proceed on our main part of our EVS2 subject. From this third lesson, we will directly take information about our great king Shivaji Maharaj. Today, in the topic of Maratha Sardars, we will learn about the famous house of the Bhosles as well as the famous Maratha houses in the Maharashtra. So let's start. So students, our topic is Maratha Sardars, the famous house of Bhosles. In this lesson, we will learn about the famous house of Bhosles. So, period of unrest. As the sons preach devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. देखो बच्चों, वो जो समय था वो बिल्कुल ही अनरेस्ट का था. हर तरफ युद्ध चालू रहते थे और जो दो सुल्तान्स थे, आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, ये एक दूसरे के साथ वॉर जब लड़ाई करते थे तब वो मराठा सरदार्स की जो आर्मी होती थी उसका वो इस्तेमाल करते थे. द ब्रेव मराठा सरदार्स. द मराठास वर बोथ ब्रेव एंड टफ. दे वर ऑल्सो fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldiers with a spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. देखो, मतलब मराठा सरदार जो थे वो बहुत ही ब्रेव थे और टफ थे. वो जल्दी से हारते नहीं थे और उनकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो सबसे बड़ा जो गुण था वो ये था कि वो बहुत ही लॉयल थे. वो ईमानदार थे अपने मास्टर्स की ओर और उन्हें अपने इन जो अचीवमेंट्स होते थे, जो बैटलफील्ड पर जो रणांगन में युद्ध करके वो जो जीतते थे, उन पर उन्हें बहुत ही गर्व था. और मराठा सरदार अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में स्पीयर लेकर और वो बैटलफील्ड पर बहुत ही ज़्यादा अपनी ब्रेवरी वो दिखाते थे. और उनकी यही ब्रेवरी देखकर आदिल शाह सुल्तान और निज़ाम शाह सुल्तान, अगर कोई मराठा सरदार आदिल शाह के पास या निज़ाम शाह सुल्तान के पास अपनी आर्मी लेकर जाए तो वो तुरंत उस मराठा सरदार को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे देते थे और उन्हें एक जागीर दे देते थे. अब अगर किसी सरदार को इस तरह की जागीर मिली तो वो मराठा सरदार खुद को एक राजा मानता था. There were many Maratha Sardars at the courts of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among there were the Dazavs of Sindkhed, Nimbalkars of Phaltan, Ghorpades of Budhod, Mores of Javali, Bhosles of Verud. The Sindkhed Jadhavs were descendants of the Yadavs of Devgiri. Jizabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhojirao Jadhav of Sindkhed. देखो, उस समय में महाराष्ट्र में बहुत सारे फेमस मराठा सरदार्स थे जो बहुत ही ब्रेव थे. अब
इन सारे मराठा सरदार्स में बहुत सारे सरदार्स अहमदनगर और बीजापुर के कोर्ट में वो सरदार थे, वहाँ पे काम करते थे। इन सारे मराठा सरदार्स में सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे और वेरुल के भोसलेस थे। और हमारा जो लेसन है द फेमस हाउस ऑफ भोसलेस, ये डिपेंड है वेरुल के भोसलेस पर, जो डिसेंडेंट्स है शिवाजी महाराज के फैमिली के। द सिंदखेड़ जादव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी एंड जिजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड़। और सिंदखेड़ के जो सरदार थे लखुजीराव जाधव, उनकी बेटी जिजाबाई जो शिवाजी महाराज की मदर थी, और वो लखुजीराव जाधव सरदार जो सिंदखेड़ के थे उनकी वो बेटी थी। ट्रेडिशन ऑफ वेल्लर। ऑल दीज सरदार्स वर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वर स्वॉर्न एनिमीज ऑफ वन अनदर। They never thought that they would unite and do something for their own people. So, all their valor and bravery served the interest of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive with the tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. देखो बच्चों, ट्रेडिशन ऑफ वेलर, वेलर मीन्स ब्रेवरी, शूरता। हमने जितने भी मराठा सरदार देखे, जैसे सिंदखेड़ के जाधव, वेरुल के भोसले, ये सब ब्रेव थे, शूर थे, ये किसी से डरते नहीं थे। लेकिन ये भी उतना ही सच था कि दे वेयर स्मॉल एनिमीज ऑफ वन अनदर, सब के सब एक दूसरे के बड़े ही दुश्मन थे। दे नेवर थॉट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। और ये कभी वो सोचते नहीं थे कि अगर वो एक साथ आ जाए तो वो अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, और ऐसा उन्होंने कभी किया ही नहीं। बहुत ही फेमस और बहुत सारे मराठा सोल्जर्स इनके फैमिली में बॉर्न हुए, लेकिन उन्होंने कभी यूनाइट होने का, एक साथ आने का कभी उन्होंने सोचा नहीं। और इन सब में द फेमस फैमिली जो थी भोसले ऑफ वेरुल शोड ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज। इनमें से जो वेरुल के भोसले थे उन्होंने अपनी ब्रेवरी बहुत ही ज़्यादा पैमाने में दिखाई। नाउ द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves was falling to pieces. The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple. Thus, the temple which was built in honor of a great god was totally neglected. All the deities who came there mourned over the sorry temple of, but no one thought for repairing it. देखो बच्चों, उस समय वहाँ पे घृष्णेश्वर का एक टेम्पल था, महादेव का एक मंदिर था, लेकिन आज से 400 ईयर्स एगो वो जो टेम्पल था वो गिर चुका था। उसकी सारी जो दीवारें थी वो गिर चुकी थी, उनमें क्रैक्स आ गए थे। वहाँ के जो प्रीस्ट थे, वहाँ पे जो साधु वगैरह जो लोग रहते थे, वो तक वो मंदिर छोड़कर चले गए थे। Thus, the temple which was built in honor of great God was totally neglected. इसलिए जो टेम्पल जो महादेव के लिए बनाया गया था वो टोटली निगलेक्टेड पोजीशन में था। All the deity who came there mourned over the sorry state of the temple. और वहाँ पे दर्शन लेने को जो लोग आते थे वो भी टेम्पल की ये कंडीशन देखकर उन्हें दुख होता था, लेकिन उस टेम्पल को फिर से बनाने के बारे में या उसे रिपेयर करने के बारे में कोई भी सोचता नहीं था। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and bale on the lingam and express his innermost thoughts to the god. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. Now,
There were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Grushneshwar was restored. Who was this devotee who did all this? He was Maloji Raje Bhosle. But लेकिन एक भक्त था महादेव का जो रेगुलरली उस टेम्पल में महादेव का दर्शन करने के लिए आता था, और उस महादेव के टेम्पल में वो बेल और लिंगम और उनकी जो इनरमोस्ट जो फीलिंग्स थी, उसकी जो इच्छा थी, वो महादेव के सामने वो प्रकट करता था। और उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि वो घृष्णेश्वर टेम्पल को रिपेयर करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया। नाउ आफ्टर सम ईयर्स आफ्टर रिपेयरिंग इट, द टेम्पल वॉज फुल ऑफ लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल, एंड द लॉस्ट ग्रैंडर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर। और उनके इस एक्टिविटी के कारण, कार्य के कारण, फिर जो टेम्पल था घृष्णेश्वर का वो रिपेयर हो गया और वो अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया। तो कौन थे ये डिवोटी, कौन थे ये महादेव के भक्त? तो वो थे मालोजी राजे भोसले, द ग्रैंड फादर ऑफ आवर ग्रेट मराठा किंग शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज। ये जो पीक देख रहे हो आप बच्चों, ये शिवाजी महाराज के फादर की पीक है। इनका नाम है शाहजी राजे। तो घृष्णेश्वर टेम्पल जिन्होंने रिस्टोर किया था, जिन्होंने रिपेयर किया था, वो हमारे शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले के वो पिता थे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे in the first lesson, Maratha Sardars and the famous house of Bhosles, we learn about the points: period of unrest, the brave Maratha Sardars, tradition of Velar, and the temple of Grushneshwar. And also we learn about the peak of Shivaji Maharaj's father. He was Shahaji Raje Bhosle. Later on, in our next lesson, in our next part of lesson, we will learn about the Bhosles of Verul and Shahaji Raje Bhosle. Thank you.